Good evening, everyone. Okay, I'm good too. Good evening, good evening, good evening, everybody. Okay, so today's session is specially for again NEET 2020 students. So बच्चों आज का सेशन जो है वो बहुत स्पेशल सेशन है, बहुत ज्यादा स्पेशल सेशन है, स्पेशली सभी बच्चों के लिए, सभी जो नीट 2020 जिन्होंने अपीयर किया है, एंड आई थिंक जो अभी आगे अपीयर करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस सेशन. ओके, इस सेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ. So after NEET 2020, what has happened is there are lots of people, lots of students who have come out with different doubts. जो अलग-अलग doubts के साथ आए हैं, कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, गॉड ब्लेस यू बेटा, जिनका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, बट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ. और कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी थे जो करना चाहते हैं, जो पैशन है और टैलेंट भी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस वो इस साल रह गए, बिकॉज दे कुड नॉट have their doubts cleared or anything, any other issues because of board examination delay or anything. वो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. सो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. इट इज स्पेशली नाउ टुडे सेशन, it is especially for the students who are aspirants of MBBS. ओके, सो बच्चों आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली उन्हीं बच्चों के लिए है जो MBBS को एस्पायर करते हैं और MBBS करना चाहते हैं, सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते हैं. ओके, सो आज का कंप्लीट सेशन इन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत कंफ्यूजन में है और डॉक्टर बनना चाहते हैं. सो बच्चों आज के एंड के सेशन में देयर विल बी अ सरप्राइज आल्सो फॉर यू ऑल. ओके, तो एक सरप्राइज भी है आप सबके लिए. ओके, so let's begin with the session completely with Learn India Pro. This is me, Sonia Gupta. Okay, so let's start the session now. Being in the session, so what we'll be doing today is the points which will be focused on today's session will be, the first point will be discussing about the NEET analysis. The complete paper will be analyzing, not the complete answer key. I'm not going to tell you. Okay, we have already discussed in the previous session the complete answer key. So today we are not going to discuss the answer key, rather we are going to discuss the topics जहां से questions आए, कौन से 11 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, will tell you. Next, second point we are going to discuss is the expected cutoff. Third point we are going to discuss, where lots of students have confusion, is who should attempt NEET 2021. And the last bonanza for this complete session will be the benefits of attempting NEET 2021. So bachos, let's quickly start the session. So first thing we'll be starting is the NEET analysis part. So let's begin with the NEET analysis. So today, see, everybody who has appeared for NEET this year, they will surely say that paper easy tha, right? Paper easy or moderate tha. It wasn't much difficult. Okay, so easy, medium और difficult level पे अगर हम questions को analyze करें, so we'll see that most of the questions, if you see the complete total questions here, they are the 22 questions which were 25 questions which were easy, which belong to easy category from the class 11. So plant diversity से there were 4 questions and they were very easy. And animal diversity से there were almost 4 questions, 1 was easy, 3 was moderate kind of. And plant morphology, obviously it was easy, guys. Okay, plant anatomy, there were moderate questions, 2 questions. Animal tissues and the organization, there were total 4 questions, 3 of moderate and 3 of easy and 1 of moderate. Cell biology, now this time cell biology as usual contained lots of questions, and there were total 6 questions from cell biology. As I've always told that cell biology, especially cell cycle topic, is very important. Very important. Guys, if you don't understand cell cycle chapter, you'll never understand how reproduction takes place. You'll never understand what is genetics. So it is always important. This chapter is always important, and as usual, as expected, many questions came from this part. Next is biomolecules, again an important part. Again, plant physiology, human physiology, as expected, there were lots of questions. There were all about 12 questions, and none of them was much difficult. So almost from class 11th, if we see, there were 25 questions which were of easy type.
20 questions which were of moderate slot, and 2 questions which were a bit difficult type. Okay, so these were the questions from class 11. So it comprises of almost 52% of the paper. Now moving on to the class 12th. So class 12, as we see here, that it again comprises of easy questions. 22 questions were easy type, 18 were moderate type, and 3 were a bit difficult type. Okay, so the questions it comprised of, as expected, biotechnology and genetics were given more preference over the other chapters. Even ecology, as expected, we always say ecology say 7 to 10 questions expected hote hain. So as usual, there were 8 questions from ecology this year. Okay, genetics, again, it makes an important part. And next thing is the biotechnology, which becomes very important in today's scenario, and you have to understand biotechnology from the core concepts. अगर आपका genetics, आपको genetics में problem है, molecular biology में problem है, तो आपके लिए biotechnology obviously थोड़ा tough हो जाता है. So यहाँ पे आपके सारे topics जो है वो 11th और 12th के related है. अगर आपको cell cycle में problem थी, अगर doubts थे, तो obviously reproduction, genetics and directly biotechnology थोड़ा tough हो जाता है, क्योंकि वहां समझ नहीं आता कि कौन से फेज में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किन फेजेस में हो रहे हैं. So here we are discussing that questions कितने थे. So 22 questions were from easy section, easy slot, 18 were moderate slot, and 3 were bit difficult type. So here we have finished the analysis part. So from the analysis we got to know that there were questions which comprised of basically from the cell biology, which makes the important part, human physiology, plant physiology, the important units I'm telling you, the genetics part, which becomes important, biotechnology and ecology. Okay, so these were the important chapters, or you can say important units. As we always say, these are always the important units from where the questions come, and most probability the higher number of questions comes from these units only. Okay, so this is the complete NEET analysis part, and overall the paper was easy, guys. Okay, and there were almost equal distribution between class 11th as well as class 12th. So this analysis part was for the students basically who wanted to self-analyze their paper, who wanted to self-analyze their performance, and for the students who will be appearing in the further years. Okay, who tend to appear in the further years. Next, moving on to the analysis again, that is the 11th and 12th, they shared the equal weightage. The concept clarity, the questions were from concept based. They were not questions where you could cram or just vomit out. Okay, they were more concept based. Cramming won't work in such papers. Thorough NCERT reading was important, and interrelated topics, as I always say, they are important. The paper, जो सक्सेसफुल, जो लोग अच्छे से कर गए पेपर, एंड जिनको बहुत इजी लगा होगा पेपर, they would have throughout the year must have gone through proper planning and implementation. So I expect this from the batch of the next year also, that you should properly plan your year and implement. और जो बच्चे, प्लीज स्टॉप दिस हैबिट, जो बच्चे कभी एक बुक पढ़ते हैं, कभी दूसरी बुक, कभी ट्रूमैन्स उठा लिया, कभी मॉडर्न उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कहीं का स्टडी मटेरियल उठा लिया, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट डू दैट. एनसीईआरटी को पकड़ो, उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ो, थॉरोली. ओके, ये एक एडवाइस है. अगर मानोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तो पछताओगे. ओके, नथिंग एल्स. लेकिन एक बुक को लो और उसको शिद्दत से फॉलो करो, एंड आई विल से कि एनसीईआरटी को फॉलो करो. ओके, शिद्दत से फॉलो करो. ऐसा नहीं कि भटकते रहे, कभी इस बुक पे, कभी उस बुक पे, कभी किसने का ट्रूमैन्स अच्छी है तो ट्रूमैन्स को पढ़ लिया, कभी किसने का नहीं मॉडर्न्स अच्छे मैंने तो मॉडर्न्स लिए, उसको पढ़ लिया, कभी किसने कुछ पढ़ लिया. प्लीज स्टिक टू वन बुक. जस्ट हैव फेथ ऑन वन बुक. उसी पे विश्वास करो और उसी से पढ़ो. ओके, एंड द स्टैंडर्ड इज ऑलवेज एनसीईआरटी, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जिसके लिए बच्चे देख रहे हैं वीडियो और ये सेशन ले रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ओके, सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में students, before moving on or discussing on to the expected cutoff part, we'll first discuss what are the number of colleges in India, especially for MBBS, and here I have shared the number of colleges from BDS also.
Here we have categorized this as government colleges, private colleges, including the deemed colleges also. And since from this year AIIMS and JIPMER seats were also included, so those seats also. So overall we see for MBBS, the government colleges all over India, there were 272 colleges, which comprises of 41,388 seats. Now, private seats include, private colleges seat includes, or private colleges are 260 colleges, which comprises of 35,540 seats. Now, there are 15 AIIMS, 2 JIPMER. The seats were 1,205 AIIMS seat and 200 JIPMER seats. Now, total colleges which comes to be, that is 549, and the total seats which comes to be 78,333 seats, that is 78,333 seats. Now students, please mark this part that this 7833 seats, 78,333 seats includes private colleges also. So if you are specially focusing on government colleges, so government colleges seats is 41,388 and this 1,205 AIIMS and 200 JIPMER seats. Okay, so here the data for BDS is also mentioned. You can see here. Now, especially as I said, this session is especially for the MBBS pursuing students. So government colleges पे हम focus करते हुए आगे चलते हैं session में, moving on to the expected cutoff. Okay, now moving on to the expected cutoff, I'm not telling the overall cutoff, but I'm talking about just about the cutoff for the MBBS. Okay, so बच्चों इस साल का जो पेपर था, being it was very easy, so as we have seen कि last year already 700 plus score आ चुका है जो पहले नहीं था. So this year, since the paper was a bit easy, so obviously 700 plus score is a higher probability of expectations from our side. So we have categorized the rank, the expected cutoff. Now this cutoff or the rank wise, the marks and the rank wise range, all India rank range, I would say it is not exactly same, but plus minus with the error of plus minus 10, 15, you can take it. But प्लीज कल को आके ही मत कहना कि मैम आपने तो कहा था कि 1 to 19 में 720 to 700 मार्क्स का ही रहेगा. नो, ओके, दिस इज जस्ट द एक्सपेक्टेशन. सो एक्सपेक्टेड, as आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, इट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ओके, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है बच्चों कि 720 से 700 मार्क्स के बीच में अगर आपकी आ रहे हैं, सो योर AIR may be around 1 to 19. Okay, it may be around 1 to 19. So students, I hope कि आप सबने अपने अपने जो आंसर्स है वो देख लिया, आंसर कीज कहीं ना कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से देख ली है, एंड यू हैव कैलकुलेटेड योर मार्क्स. सो बेस्ड ऑन दिस यू विल सी दैट डिफरेंट रैंकिंग स्लॉट्स. ओके, रैंकिंग स्लॉट्स है. तो up to 600 marks we are expecting the rank will reach up to 23,678 rank, and we are expecting that up to 550 the ranks are reaching at 44,544 to 51,086. Now I'd like to focus on कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर कर रहे हैं. तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर कर रहे हैं, सो एज यू कैन सी द रैंक्स इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर 41,000, अराउंड 41,000. तो आपके मार्क्स बच्चों इसके अकॉर्डिंग योर मार्क्स शुड बी अबव 560 और 540 अराउंड, राइट, 550 अराउंड, सॉरी. So 550 से बच्चे above जिसके मार्क्स हैं, they are in the safe category. I'm speaking about only general category. Please mark this point, general category. जो SC ST हैं वो मार्क्स का थोड़ा और रेंज ले सकते हैं 40-50 मार्क्स का, but this is for general category कि बच्चों जो आप 550 से above हैं, they are in the safer category. So as I was saying, the marks, the students who have secured marks above 550, they are in the safer category. Okay. So now students who have secured marks below 550, now students, this is the time for you to think upon that whether you seriously want to go to a private college or you want to go for a government college. Okay, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारे government colleges अच्छे हैं और मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारे private colleges अच्छे हैं या बुरे हैं. It depends upon what kind of college and which place you want. ओके, ना आई डोंट से कि आपको 550 मार्क्स पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या आई वोंट से कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा एट एग्जैक्टली व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड सिक्योर्ड 600 मार्क्स. कई बार बच्चों क्या होता है
कि कई बार क्या जो काउंसलिंग का सेशन होता है वो उसमें ये होता है कि आपको ऑल इंडिया सीट्स होती हैं और स्टेट रैंक की सीट्स होती है। ओके, तो ऑल इंडिया जो सीट्स होती हैं वो कम होती हैं, दैट इज 15% ऑफ द सीट्स, एंड जो स्टेट रैंक की सीट्स होती है दैट इज 85% ऑफ द सीट्स। ओके, तो कई बार क्या होता है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो 600 के आसपास आ रहे हैं या फिर 580 के आसपास आ रहे हैं, सो बेस्ड ऑन स्टेट कोटा लगकर उसकी जो सीट है उस स्टेट में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिमाचल से हैं और आपके मार्क्स बाय चांस लेट्स से 590 580 या 560 तक आ रहे हैं, ओके, तो हिमाचल में अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द एडमिशन दैट, बट यूजिंग योर कोटा, ऑल इंडिया कोटा। बट जो स्टेट कोटा है, जो उसी स्टेट के बच्चे, हिमाचल के बच्चे हैं, उनके लिए वो इजी हो जाता है। ओके, क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि वो कोटा लग जाता है। ओके, सो यहाँ पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा जो है वहां मैटर करता है कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं आप, और आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अपने स्टेट के बाहर के कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली योर ऑल इंडिया रैंक शुड बी मच हायर, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए उस कॉलेज के लिए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली हिमाचल में अगर आपको चाहिए तो वहां पे आईजीएमसी के लिए यू शुड हैव अ गुड स्कोर, अ बेटर स्कोर, एंड अगर आप उसी स्टेट के हैं यू विल गेट अ गुड कॉलेज ऑल्सो देयर। ओके, आईजीएमसी वगैरह आपको आराम से मिल सकता है। ओके, बट यहीं पे अगर आप दिल्ली के हैं, सो वहां पे अगर मैमसी जैसे कॉलेज को आप टारगेट करते हैं तो वहां पे थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। यू शुड हैव बीन अ हायर स्कोर, आपके वहां पे मार्क्स अच्छे होने चाहिए। योर मार्क्स शुड बी अबव 660 650, इससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, यू विल इजीली गेट एट दैट कंडीशन। ओके, सो इसमें स्टेट कोटा का भी बहुत मैटर करता है कि आपका स्टेट कौन सा लग रहा है। सो बेसिकली द थिंग इज, अगर आपके मार्क्स 550 से ऊपर आ रहे हैं, सो यू हैव इजी टू गो फॉर द काउंसलिंग, आप काउंसलिंग अटेंड करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट द थिंग इज कि पसंद नापसंद का कॉलेज मिलना, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट करें। इफ यू आर targeting on the creamy colleges, obviously your mark should be at a higher slot, and if you are targeting for any government college, so you'll get the seat. But now question comes for the student जिनके 550 से मार्क्स कम है, अब उनको क्या करना चाहिए? As I said, you check your priority whether you want to go for a private college or whether you want to go for a government college. Okay, so now the question comes, जिनके मार्क्स इससे कम आए हैं उनके लिए अब क्वेश्चन है, उनके लिए दुविधा है कि नीट 2021 दे या ना दे। ओके बच्चों, मैं जो बोलूंगी, नीट 2021 देने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप सबसे पहले चुपचाप शांति से बैठ के काम माइंड से विद पेशेंस एनालाइज योरसेल्फ, अपने आप का एनालिसिस कीजिए और फिर जानिए कि आप चाहते क्या है। ओके, फिर जानिए आप चाहते क्या है। नाउ फॉर इजी गोइंग वी हैव divided the complete student ranks into, or the marks into 4 categories, 4 categories में किया है। The top category is the students with marks lesser than 200। बच्चे यहाँ पे जिनके मार्क्स 200 से कम है उनको सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस की इन द सेंस कि अगर आप सच में पैशनेट हैं, डेडिकेटेड है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, ओके डॉक्टर ही बनना है, और आपने देख लिया है कि लास्ट ईयर आपकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी रह गई थी जो नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, ये वादा कीजिएगा अपने आप से, जो नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, जो कमी पहले रही थी जिसकी वजह से मार्क्स 200 से कम आए, तो प्लीज गो फॉर ड्रॉप, प्लीज गो फॉर ड्रॉपिंग और रिपीटिंग द ईयर टू बिकम अ डॉक्टर। बट अगर आप डॉक्टर बनने के इतने इच्छुक नहीं हैं, इतने ज्यादा डेडिकेशन नहीं है, या आपको लगता है कि मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, मेरे तो दोस्त हैं वो कॉलेज में जाएंगे, या कुछ भी ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से आप जो है अपना 100% नहीं दे पाएंगे, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर ईयर, एंड जो भी आपका टारगेट है उसको परस्यू कीजिए। जो भी आपका टारगेट है, जरूरी नहीं होता कि हर मेडिकल लेने वाले बच्चे का एम जो है वो एमबीबीएस ही हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो लाखों बच्चे जो है वो एग्जाम लिखते हैं बट सबकी सीट्स नहीं आती, या सबका एम वो नहीं होता, वो अलग अलग ऑप्शंस चूज कर लेते हैं, राइट।
सो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस देखिए, आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो कीजिए। अगर आपको सच में एमबीबीएस में इंटरेस्ट है, आई वुड से अगर आप अपना 100% दे सकते हैं, सिटिंग दे सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर द ड्रॉपिंग द ईयर। Otherwise, don't waste your time, your precious year. Now, students who has marks between 200 to 400. Now, again, for these students also, you have to analyze your performance. आप अपनी performance को analyze कीजिए कि आपने अपना 100% दिया था या नहीं दिया था। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया था, so again, think yourself कि क्या आप ये अपना 100% coming year में दे सकते हैं या नहीं। See, इस टाइम पे उन बच्चों के लिए जो स्पेशली डॉक्टर बनना चाहते हैं और जिनको पता है कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया है या वो और भी अच्छा कर सकते हैं, आई वुड से गो फॉर अगेन नीट 2021। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, व्हाई आई एम सेइंग कि सी क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज लाइक कि आप सबको ये लगता है कि हमारा साल खराब हो जाएगा, आप सबको ये लगता है हमारा साल खराब हो जाएगा। बच्चों, बात सच ये है कि साल तो सबका ही खराब हो चुका है, आपका नहीं, सबका ही खराब हो चुका है। अगर आपको ये लगता है कि अभी एडमिशंस हो जाएंगी, नो, एडमिशंस जो होंगी वो दिसंबर जैन में होंगी, इतने में 5 महीने में फिर से नीट का एग्जाम आ जाएगा। बच्चों ध्यान से सोचो, जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ये रहता है, आपका मन कहाँ भटकता है कि जो साथ वाला बच्चा है या मेरा जो क्लासमेट है वो कॉलेज में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, फिर आपको पढ़ाई के टाइम पे बीच में ऐसे लगता है डिमोटिवेटेड सा कि मेरे दोस्त तो मस्ती कर रहे हैं कॉलेज में और मैं देखो घर पे पढ़ रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा साल खराब हो गया। बच्चों, उनका भी जो अभी ड्रॉप नहीं करेंगे उन्होंने भी कोई अपना साल नहीं बचाया, साल तो उनका भी खराब हो चुका है, घर में सभी बैठे हैं, साल सबका ही खराब हुआ है। ओके, टाइम सबका ही लेट चला है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीएससी में जाके अभी बचा लेंगे अपना टाइम, ना, आई डोंट थिंक सो। बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, फिर उसके बाद पीएचडी करोगे, अगर सच में शिद्दत है डॉक्टर बनने की तो आप अभी से प्रिपरेशन चालू करोगे, 8 महीने में फिर से नीट आ जाएगा। अगर और बच्चों का, आपके फ्रेंड्स का जैन में भी एग्जाम होता है, जैन में भी सेशन स्टार्ट होता है, तो आपका नीट तो 4 महीने में, 5 महीने में दोबारा आ जाएगा। आपने कौन सा, उनका भी 21 में एडमिशन हुआ, आपका भी 21 में एडमिशन हुआ, राइट। सो साल खराब होने वाली बात नहीं है, और जहां आपको लगता है कि सब मस्ती कर रहे हैं, वो बात भी नहीं है। ओके, वो बात भी नहीं है, क्योंकि सब मस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, सब अपने घर पे ही है। इट इज गुड टाइम, एक्चुअली इट इज गुड टाइम फॉर यू पीपल टू स्टडी एट होम। कोई बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आप अपने घर पे बैठिए, शांति से पढ़िए, कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, शांति से पढ़िए। ओके, now students, the third slot for the students who are getting marks between 400 to 580. Now students, for this range, for the students who have secured marks between 400 to 580 or who are securing marks between 400 to 580, I would definitely recommend to go for repeating the year. See, ये जो आप बार बार ड्रॉप वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉप नहीं है, एक्चुअली ड्रॉप से डॉक्टर तक का सफर है। ओके, तो आपके अगर मार्क्स अभी 400 अबव आ रहे हैं, सो देयर आर गुड चांसेस कि आप 8 महीने और मेहनत करेंगे, इजीली यू कैन स्कोर एंड यू कैन इंक्रीज योर स्कोर बाय 150 और 200 मार्क्स। ओके, हो सकता है अगर आपके अभी 410 आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम 580, 600, 650 तक स्कोर इजीली आपके लिए बहुत इजी होगा ये मार्क्स को इंक्रीज करना, क्योंकि आपका इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत जो कमी रही है, या तो टाइम का जो इश्यू रहा है, या जो गाइडेंस का प्रॉपर इश्यू नहीं हुआ है, या प्रैक्टिस की प्रॉब्लम हो गई है, उन इश्यूज को आपको रिकवर करना है, उन इश्यूज को आपको डील करना है। नेक्स्ट, जो 580 से 720 के बीच में है, इनकी तो मौज है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर काउंसलिंग। एंड स्टूडेंट जिनके 400 से 580 तक आए हैं, या जिनके 500 अबव भी आए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप काउंसलिंग में जाइए, पता तो लगेगा क्या होता है। काउंसलिंग में जाइए, काउंसलिंग अटेंड कीजिए, लेकिन साथ के साथ प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका साल खराब हो रहा है, नहीं होगा साल खराब, क्योंकि काउंसलिंग जो आते आते नवंबर दिसंबर हो जाएगा,
तो आपका साल कैसे खराब हुआ बच्चे? अगर काउंसलिंग में एडमिशन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो प्रिपरेशन तो स्टार्टेड ही है, राइट? 4 महीने में फिर से, 5 महीने में फिर से एग्जाम दे देंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, राइट? मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके मार्क्स जो है 600 620 आ रहे हैं, एंड दे आर अगेन थिंकिंग ऑफ राइटिंग द नीट अगेन सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर मार्क्स एंड गो फॉर एमिंग फॉर एम्स ऑल्सो। एम्स दिल्ली जैसे एम कर रहे हैं एंड इट इज गुड। सच में ऐसे बच्चों को देख के बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे बच्चे भी हैं जो एमबीबीएस सीट मिल जाएगी उनको 610 में, पता है, लेकिन फिर भी अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, एक अच्छा कॉलेज एम करने के लिए वो दोबारा से नीट देंगे, क्योंकि उनको भी पता है, दे आर थिंकिंग प्रैक्टिकली रैशनली दैट साल तो सबका ही खराब हुआ और साल खराब होने वाली बात ही नहीं है, कोई आगे कोई पीछे नहीं हो रहा है इसमें। एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग योर ब्राइट करियर। कहीं और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप अपना करियर सिक्योर कीजिए, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर काउंसलिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज the students. Now this was a previous template for all the students now who have to analyze their problem, the possibilities that what problem they were facing the previous year and what problems they have to recover this year. Now the part towards the success is, first I would recommend all students, please please please, एक जगह पे शांति से बैठो, सोचो और एक पेपर पे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है और जो तुम्हारी वीकनेस है सब लिखो, सब लिखो। क्यों लिखो? तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन में क्या क्या कमी रही थी। ये सारी कमियां लिखो और इन कमियों को लगा लो अपने सामने और सोच लो कि ये कमियां दोबारा रिपीट नहीं करनी। ये जो जितनी दिक्कतें मेरी तरफ से या मेरी प्रिपरेशन में रही, जितने भी वॉइड्स मेरी प्रिपरेशन में रहे, जितने भी लैक्यूनास मेरी प्रिपरेशन में रहे, ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे और नहीं करने हैं। ओके, ये रिपीट नहीं करने हैं, तो इनको याद करके दिमाग में बिठा लो जिन्होंने भी आगे दोबारा से नीट 2021 देना है। नेक्स्ट इज, फॉर एनी, if you are facing any problem with the subject, please, for the subject clarity, for the concept clarity, join a good class. Plan your time limit, timeline को properly plan करो, कब क्या करना है। I feel at least 4 to 5 revisions are necessary. जल्दी जल्दी, सिलेबस तो ऑलरेडी एक बार आप कर चुके हैं और जो नीट 21 फ्रेशली देंगे उनका सिलेबस आई गेस अब तक उन्होंने घर पे बैठ के कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया, आई वुड से दिसंबर तक कर लो और उसके बाद सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन, एटलीस्ट 3 रिविजन्स तो करो और प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चंस मिलते हैं सबकी प्रैक्टिस कर डालो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बी रेगुलर एंड पेशेंट। कभी भटको मत कि अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, नहीं यार अभी तो दोस्त कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जनवरी में आते ही होगा बहुत बच्चों को ना, जब एडमिशन हो जाएंगी, हो रही होंगी कि नहीं यार हम भी एडमिशन ले लेते हैं। नहीं, प्लीज अपने आप को भटकाना मत। अगर एक पाथ लिया है उसी पे चलो और फुल्ली डेडिकेशन से उस पे काम करो। ओके, एंड यू विल बी एट योर गोल, डेफिनेटली यू विल बी एट योर गोल जो करेंगे। Now the thing is benefits of attempting NEET 2021. So already I have said कि एक तो टाइम का बेस्ट यूज हो रहा है, सभी घर पे बैठे हैं, किसी का भी कोई साल बचा नहीं है, कुछ नहीं है, सभी घर पे बैठे हैं। जब सभी घर पे बैठे हैं तो टाइम को यूटिलाइज करो, अपना साल बनाओ, पढ़ाई करो अगले साल के लिए, राइट? नेक्स्ट थिंग इज, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एवरीथिंग इज फ्रेश इन योर मेमोरी। सब कुछ तुम्हारी याददाश्त में एकदम फ्रेश है राइट नाउ। सो अगर तुम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो देयर वोंट बी एनी ब्रेक और लैग। सो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेबस रिडक्शन। एज यू हैव ऑलरेडी नो कि सीबीएसई ने 2021 के लिए सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। सो देयर आर अगेन हाई चांसेस ऑफ सिलेबस रिडक्शन। नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू रियली पैशनेट टू बी अ डॉक्टर, आपको कोई और बेनिफिट की जरूरत नहीं है सोचने की, ये एक बेनिफिट काफी है मुझे लगता है, to repeat the or to attempt the NEET 2021. Okay, so now what is homework for you people is, from this video that you have to do your SWOT analysis. Now what is SWOT analysis? Whomsoever is new to this, SWOT analysis is you have to check your strengths, you have to write your strengths, you have to write your weaknesses, you have to write the opportunities you are getting, and you have to write the threats. Okay, now as such strength में क्या है, that you have already done your syllabus, एक बार syllabus हो चुका है,
यू यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड हायर मार्क्स, तो अभी आगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वीकनेस में क्या है कि आपने सिटिंग नहीं दी थी या प्रैक्टिस नहीं की थी, ताकि आपको याद रहे कि आपकी वीकनेसेस है, आपको दोबारा से सॉर्ट आउट करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी नीड 2021 है, यू हैव द बेस्ट टाइम, सब घर पे बैठे हैं, टाइम को यूटिलाइज करो। एंड व्हाट आर द थ्रेट्स? थ्रेट्स यही है कि आप जो भटक जाते हैं बीच में, दैट इज द थ्रेट to your preparation basically. Okay, so just mention these points and start your preparation. Okay, now what you are getting here at Learn India Pro is, so I said as there's a gift for you people. So the gift is, students, that the Learn India Pro will be starting a free online YouTube classes from the coming month. Okay, for the students who really want to be a doctor, who passionate to be a doctor. ओके, जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्री फ्रेश ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस का एक कोर्स आ रहा है, जहां पे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। ओके, जहां पे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, इसके अलावा आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो सबके लिए है, और ये टेस्ट सीरीज भी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। द थिंग इज, जो हम क्लासेस डालेंगे वो रिकॉर्डेड क्लासेस डालेंगे यूट्यूब पे, या हो सकता है बीच बीच में लाइव सेशंस भी ले, बट डोंट वरी, सिलेबस विल बी completely done on these classes. The thing is, for टेस्ट सीरीज हम क्या करेंगे, जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री। जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उनको टेस्ट सीरीज उनके व्हाट्सएप पे या उनके जीमेल अकाउंट या जिस भी आईडी पे वो बोलेंगे, हम उनको सेंड कर दिया करेंगे और टेस्ट एनालिसिस कर दिया करेंगे। ओके, नाउ फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू क्विकली register at Learn India Pro. Okay, so there is a free full-fledged course of biology which includes, this is the individual course which is completely free, including the test series, everything. There are most courses जहाँ पे lectures दे दिए जाते हैं, पूरे questions नहीं कराए जाते हैं, पूरा syllabus नहीं कराया जाता. We are doing everything because we want your passion to be done. Okay, so what you are getting here is that you are getting a fully fledged course with study material, one-to-one counseling, test series, test analysis also. The thing is, you have to, for the first 4 features, you have to just send us that we are dedicated to be a doctor. Just type this line that, hi, I am this and this. Write your name. For example, your name is Sonia. So, hi, I'm Sonia. I'm passionate to be a doctor and I will be appearing NEET 2021. So I want to get a counseling from you, or I want to get a test series from you, or I am joining your session, the free course, FREE, free course. Okay. Now your dedication and our guidance will surely lead to your success. That is definite. Okay. Now the thing is, if this being a doctor is really important to you, definitely you'll find a way. And if it is not, you'll find an excuse. And there are thousands of excuses, or even one excuse not to do something. But when you don't want to do something, you'll find some thousands of excuses. But when you really want to do something, there is this one reason also that is sufficient to do something. Okay. Now for contacting us for course, the online course you will be getting on YouTube. Even you can check it on Telegram Messenger. You can join us on Telegram Messenger with the channel Learn India Pro. So you will be getting all the lessons here. But for the test series and the analysis part and the study material part, definitely you have to either check us on or join us on Telegram Messenger, because daily we are posting the question, and the students who will be appearing in NEET 2021, उनके लिए एक subjective special test series भी आ रही है, जहाँ पे हम daily 2 to 3 questions आप लोगों को देंगे, जो आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करें। उसके अलावा डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो वहां पे हम डाल ही रहे हैं, और ऑलरेडी दैट प्रोसेस इज देयर। तो आपको क्वेश्चंस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम मैसेंजर।
or you can contact us on these two given numbers. One number is 8607776640. The another number is 98820988888. Even you can mail us at learnindiapro@gmail.com. Okay, so these are the complete features of Learn India Pro. Okay, so this is the complete features. You can join the course if you really want to be a doctor. Guys, ऐसे जो चांसेस है वो बहुत कम मिलते हैं बच्चों को, जहां एकदम फ्री गाइडेंस सबको मिलती है. सो आई वुड से दैट यू शुड ज्वाइन. फ्री दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्री मिल रहा है. ओके, लर्न इंडिया प्रो, द एम इज टू रीच टू द स्टूडेंट्स who really want to get education, who really want to pursue their dreams or really want to be successful in life. ओके, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है सक्सेसफुल की, बट दैट इज डिफरेंट पार्ट. लेकिन आप सच में अगर कुछ करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस फ्री कोर्स. फ्री कोर्स में जो और जगह मिलेगा, सिर्फ वीडियोस मिलेंगे या कुछ भी मिलेगा, आप सबको पता है, दैट इज जनरल. सबको पता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्वेश्चंस मिलते हैं नहीं, बट यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग फ्री. सो इट्स योर विश, आई वोंट से. So it's your wish. If you want to join, you can join. If you don't want to join, it's your wish. Okay, so all the best for the students, all the best for the students who are appearing in NEET 2021. Okay, and all the best for the students who have appeared in NEET 2020. All the best to every student, to each and every student. God bless you, all the students who have done or who will be qualifying NEET and getting their admission this year. Or God bless you, bacha. But and for the next year also, I wish you all the best, and again God bless you. मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं. Okay, so God bless you everyone. Thank you everyone. Thank you Rashi, thank you Upen, thank you so much. I hope I helped you. Yeah, thank you. Yeah, okay, thank you so much. So with this, I end the session here, and I'll be waiting for your messages. I want to know who all are interested in this. Okay, thank you so much.